Hello everybody, welcome back and thank you so much for joining me. So in this video, as you know, we are checking up on how this person is responsible for Sushant's death. Okay, so let's check this out. God's card is angels, archangels, spirit cards, spirit guides, Matur Kema Kali, Om Ganeshaya Namah, Jabadambali. My dear friend is spirit of world, my dear guardian angels, please tell us how is Sushant's death. We thank you for the divine guidance and blessings coming from you for this question, for all of us here who wants to know this. How is this guy, how is this person related with Sushant's death? Alright, judgment. Judgment. So this guy has caused a lot of stress, a lot of emotional loss and lot of heartbreak to Sushant, which finally drove him to the final judgment. Okay, so this guy has played a very important role in Sushant's death. You got the Hanged Man, guys. You got the Deception card, and you got Sushant. So all this deception, all this heartbreak, all this emotional loss, stress and judgment was being played around Sushant. And this guy is very hopeful. He's very hopeful. He wants something from Sushant. He wants something from Sushant. Are you seeing this? He is hopeful. He has big dreams and he's walking with his cup filled with dreams on his horse towards future. He is very hopeful about the future. इसको कुछ सुशांत से चाहिए था जिसके इसके सारे dreams पूरे होते. Let's watch out for the final card now. Alright, so this is what it is. Back of the deck. Oh, Empress card. You got the Empress card in reverse. You have this. You have all this. And you got the Justice. You got Three of Cups. Okay. How is this person responsible for Sushant's death? How is he related with Sushant's death? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देखिए आपकी जजमेंट कार्ड है यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ दिस रीडिंग, विच मीन्स कि दिस गाय, this guy hammered the last nail in the coffin, in Sushant's coffin. यानी कि एक जो होता है ना लास्ट कॉल कि नहीं यार अब इसको वी हैव टू डील विद हिम, वी हैव टू फिनिश इट ऑफ, जो एक लास्ट कॉल होता है ना वो इस बंदे ने लिया है. जजमेंट कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड एंड that has just gone flipped up and went and sat at the center of the reading, which means a lot of things, which means intense. Okay, this guy's involvement with Sushant's death is intense, is at the center of the whole story, and even here you see how he is sitting at the center. Okay, so इस आदमी ने, इस लड़के ने सुशांत का डेथ जो है उसको जजमेंट पे लाया है. ही इज द पर्सन हु टुक द कॉल्स, ही इज द पर्सन हु डिसाइडेड, हैड द फाइनल से. ओके, इसको बहुत स्ट्रेस था सुशांत से. Dear angels, please tell us, how is this person responsible with Sushant's death?
is this person responsible linked with Sushant's death? How is this person linked with Sushant's death? How is this person linked with Sushant's death? Surrender stress. इस बंदे को सुशांत से किसी चीज का डर था. How is this person responsible related with Sushant's death? इसको कोई चीज चाहिए थी इसको सुशांत से. He had some result in mind जो कि सुशांत से उसको मिल पाता. यहाँ पे भी देखो ये कप है, नाइट ऑफ कप्स है. ही इज़ वेरी होपफुल, ही हैज़ ड्रीम्स, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया. तो इस बंदे को कुछ चीज़ चाहिए थी सुशांत से. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ही इज़ दिस पर्सन इज़ आइंग दिस रिचेस, ज्वेलरी है, उस पे ही इसकी नज़र है. और दिस गाय इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू सम, यू नो, ऐसा माइनर का एंगल आ रहा है. तो ये इससे भी लिंक्ड है और यहाँ पे भी इसकी नज़र है. तो किसी चीज़ से यहाँ पे स्ट्रेस है. इसको देखो, दिस गाय हैज़ अ स्ट्रेस विद समथिंग. सुशांत को कुछ ऐसा पता था जिसके कारण इस बंदे को काफ़ी डर था, स्ट्रेस था, और इसको सुशांत से कोई रिजल्ट्स भी चाहिए था. तो यहाँ पे रिचेस, ज्वेल्स पे इसका काफ़ी नज़र है. बहुत सारी चीज़ें हैं. और how is this person responsible or related with Sushant's death? How is this person related with Sushant's death? फ्रस्ट्रेशन था इस बंदे को. तो आप देख रहे हो ना कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं सुशांत के डेथ से, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे सुशांत से. सुशांत उनके गले का एक फांस बोलते हो ना, वो बन गए थे. फ्रस्ट्रेशन था, स्ट्रेस भी था इस बंदे को. तो स्ट्रेस भी था और रिजल्ट्स भी था. How is this person related to Sushant's death, dear angels? Anything that you want us to know? Anything what you should know? Anything that we should know? Okay. Surrender to non-action. Now is the time to be still and not act. Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. Let others come to you. Resentment भी आ गया है. तो ये सारे कार्ड्स आते हैं सुशांत का जब भी डेथ का बात करो, किसी से भी रिलेटेड. ठीक है. सरेंडर टू नॉन एक्शन. ये बंदा कुछ काम करने वाला आदमी है नहीं. नाउ इज द टाइम टू बी स्टिल एंड नॉट एक्ट. सिंपली ब्रीथ एंड फोकस ऑन योर ओन पावर. लेट द अदर्स कम टू यू. लेट द अदर्स कम टू यू. These are the arrogant people who want others to come to them. रिसेंटमेंट वाला कार्ड हमेशा आता है, आप देखते हो. तो इस बंदे को काफ़ी स्ट्रेस था सुशांत से. सुशांत को कोई बात पता थी जिसके कारण ये काफ़ी स्ट्रेस में रहता था सुशांत के कारण. और फ्रस्ट्रेशन भी है. तो ये सारी चीज़ें हैं. और इस बंदे को कुछ चाहिए भी था सुशांत से. ठीक है, अटैचमेंट. तो ये बिल्कुल एक वो जो उनका पेटेंट वाला एंगल है ना, यहाँ पे आ रहा है. क्योंकि आप यहाँ पे भी देखो कि ये काफ़ी होपफुल था, कुछ चीज़ चाहिए थी इसको. ठीक है. और यहाँ पे भी देखो ये कुछ सामान चुरा के उनका भाग रहा है. ओके. तो इस एटीट्यूड से ही इसने कुछ प्लानिंग किया था, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या प्लानिंग किया था. बट इस बंदे का जो एटीट्यूड है, हाउ इज दिस पर्सन रिस्पॉन्सिबल विद सुशांत डेथ, तो इंटेंशन यही है कि ये कुछ सुशांत से चुराना चाहता था. और सुशांत का डेथ यहाँ पे देखो हो रहा है. सुशांत का सिचुएशन है यहाँ पे. तो किस तरह का सिचुएशन है आप देखो. पहले तो एक सबकॉन्शियस लेवल पे तो हैंग ही कर दिया है उनको. यानी कि सबकॉन्शियस लेवल आप बोल सकते हो कि ढके छुपे तौर पे, जो कि कॉन्शियस वर्ल्ड में किसी को नहीं पता है, फिजिकल वर्ल्ड में किसी को नहीं पता है, लेकिन ढके छुपे तौर पे उन्होंने यहाँ पे सुशांत को इन्हीं लोगों ने हैंग किया है. इसी बंदे ने हैंग किया है. इसी ने ये फाइनल कॉल लिया है सुशांत को हैंग करने का. आप देख रहे हो, जो कि किसी को पता नहीं है, सब कॉन्शियस लेवल पे है. इट इज़ अ डार्क सीक्रेट, डार्क वेब आप बोल सकते हो. इट इज़ हैपनिंग below the surface, dark web. It's happening at a subconscious level, you know, not something that everybody knows about. It something that not it is in the public domain में नहीं है, open नहीं है, disclosed है, subconscious level पे है, hidden है. तो ये जो judgment है सुशांत का, जो hidden
हैंग किया गया है, जो हिडन है लोगों से, इसका जजमेंट इसी बंदे ने लिया है। इसको किसी चीज़ से डर था, सुशांत के कारण इसको स्ट्रेस हो रहा था। अगर आप यहाँ पे देखो, ये वाला कार्ड जब मैंने पूछा था, वो जो रीडिंग की थी जहाँ पे पूछा था कि वॉज देयर एनीबडी एल्स हु डाइड विद सुशांत, तो ये वाला कार्ड सिग्निफिकेटर है उस रीडिंग का, जहाँ पे ये आया था कि दो बॉडीज लगता है कि यहाँ पे है, एक तो सुशांत का ऊपर में बॉडी और एक ये दूसरी लड़की का बॉडी। तो आप देखो कि जब ये पेंगुइन का बात कर रहे हैं तो ये माइनर एंगल भी आ गया है। ओके, सिग्निफिकेटर कार्ड है उस रीडिंग का। आप देखना, जब हमने पूछा था कि दूसरी बॉडी किसकी थी, तो वही वाला कार्ड यहाँ पे आया है। और यानी कि ये जजमेंट इसने इसीलिए लिया है क्योंकि ये वाला एंगल के कारण जो है इस बंदे को स्ट्रेस था, इसको डर था कि कुछ बात बाहर आ जाएगी, तो इस कारण से इसने ये वाला डिसीजन लिया सुशांत को मारने का, जो कि हिडन है, सबसे किसी को पता नहीं है। इट इज अंडर द कार्पेट थिंग, इट इज हिडन इन द डार्क वर्ल्ड। तो ये सारा चीज़ हुआ अंडर द कार्पेट, बिलो द सी लेवल, ये बताया मैंने। अब कॉन्शियस लेवल पे देखो इस बंदे ने क्या किया है कि इमोशनल लॉस किया है, इमोशनली लॉस। सुशांत को एक बोल सकते हैं कि इमोशनली एक अलग थलग कर दिया था ये बंदे ने, क्योंकि ये प्लानिंग करके कुछ किया है इसने, ठीक है। इमोशनली उनको अलग कर दिया था, सुशांत को ब्रेक कर दिया था आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एक हार्ट ब्रेक का कार्ड है पास्ट में उनके, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने इसका पूछा व्हाई इज इट दिस, तो हार्ट ब्रेक क्यों हुआ, तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आ गई है, और ये लवर्स का कार्ड है, और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो चलो ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई है इन रिवर्स एंड लवर्स, यानी कि ये बिल्कुल ये जो हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स होती है रिया, वो वाला एंगल है। तो ये लड़की अगेन लगता है कि इस बंदे ने इस रिया को प्लांट किया था सुशांत के लाइफ में, क्योंकि इसको सुशांत से बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। ओके, इसकी नज़र उनके कुछ तो ज्वेल्स है, बहुत सारा ज्वेलरी है, बहुत पैसा है, ऑलराइट। तो ये जो रिया है उनको सिस्टमैटिकली इमोशनली ब्रेक कर रही थी। यहाँ पे देखिए हार्ट का, माने कि उनके दिल में जगह बना के उनको ब्रेक कर रही थी। ये देखिए टावर कार्ड उनको ब्रेक कर रही थी। वो जो एक बंदा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला एक बंदा था ना, उसके दिल से जगह बना के वो बंदी उसके पूरे, आप बोल सकते हो कि उसके पूरे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो थी उसमें दीमक लगा रही थी। हार्ट के रास्ते से जाके उसने उसमें क्रैक कर दिया था, ताकि उनका पूरा फाउंडेशन को वो वीक कर दे और वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए सब लोगों से। तो यही वो कर भी रही थी, अगर आपको पता है तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे भी देखो एम्प्रेस कार्ड उल्टा आया है। एम्प्रेस कार्ड इज़ इक्वल टू योर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसको भी पता है चारों। और यहाँ पे काफ़ी उसने एक, यहाँ पे देखो इमोशनल मैनिपुलेशन भी है, सॉरी मेंटल मैनिपुलेशन भी है और इमोशनल मैनिपुलेशन भी है। आप देखो दोनों तरफ किया जा रहा था उसको, उनको मेंटली भी वीक किया जा रहा था ब्रिक बाय ब्रिक, और इमोशनली भी उनको अलग थलग किया जा रहा था। और ये सारा काम कर रही थी ये एम्प्रेस और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज रिया हु इज डूइंग ऑल दिस थिंग, शी इज प्लांटेड बाय दिस पेंगुइन, क्योंकि पेंगुइन का इंटेंशन ही है कि उसको कोई चीज़ चुरानी है, दिस थिंग हमारे सुशांत से, ठीक है। तो सुशांत को देखो उनका एनर्जी कितना अनग्राउंडेड कर दिया है, उनको बिल्कुल ड्रग दे दे के, उनको इमोशनली टॉर्चर करके, हार्ट ब्रेक उनका करके, उनकी पर्सनालिटी को करोड करके उनको इतना वीक बना दिया कि उनकी सारी ग्राउंडिंग उस लोगों ने ख़त्म कर दी है। जबकि हमारे सुशांत ऐसे होते थे, तो उनका ही फ़ायदा उठा के, उनके ही वीकनेस का फ़ायदा उठा के इन्होंने उनको बिल्कुल उनको ज़मीन से उखाड़ दिया है। ये है पूरा, क्योंकि ये बंदे को कुछ चाहिए था, ये होपफुल था, उसी इंटेंशन से उसने ये बंदी को उसके घर में प्लांट किया था। ओके, ये दोनों कार्ड हमेशा सेम से पढ़ा जाता है, तो दैट इज व्हाट इट। और ये बंदा काफ़ी, इसके लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है। एक तो देखो ये सुशांत के पैसे पे इसकी नज़र थी, ये इन्फिनिटी सिंबल से ही पता चलता है कि बस पैसे ही पैसे पे इसकी नज़र थी। मैंने कि अनलिमिटेड मनी, ओके, इन्फिनिटी सिंबल है। ये वाले इंटेंशन से ही जो भी हुआ था सुशांत के साथ इस बंदे ने किया था, क्योंकि इसकी नज़र थी रिजल्ट पे। रिजल्ट वाला कार्ड आया है ना, अटैचमेंट टू रिजल्ट्स,
The formula of success is to do all you can do to make things happen, then let go of the results. Holding on too tightly to a desired outcome can sabotage it. तो ये बंदा यही था, इसे कुछ चाहिए था, बहुत ज़्यादा पैसा, इन्फिनिटी सिंबल का इतना पैसा कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है. इसकी लाइफ बहुत ही अनबैलेंस्ड है, ओके, और काफ़ी इंडल्जेंट है, ये किसी भी चीज़ में बहुत इंडल्ज करता है, ओके. तो ये चीज़ है. तो इस सारे इंटेंशन से दिस इज हाउ दिस गाय इज रिलेटेड टू सुशांत. इमोशनली उसको ब्रेक करना, मेंटली उसको ब्रेक करना, किसी को उसने एम्प्लॉय किया था, डिप्लॉय किया था उसके लाइफ में सुशांत के, ताकि वो उसको दिल के रास्ते से जगह बना के उसकी पूरी पर्सनालिटी को वो बिल्कुल डिमोलिश कर दे. और काफ़ी उसने उसके कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया है उन लोगों ने, और बिकॉज विद द इंटेंशन टू स्टील समथिंग फ्रॉम हिम. तो दिस इज द गाइडेंस गाय. दिस इज हाउ दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुशांत डेथ. और इसने फाइनल कॉल लिया है. ये दोनों कार्ड बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है. दिस गाय टुक द फाइनल डिसीजन and did this which is hidden from everybody under the ground, deep below the iceberg. में जो भी काम हुआ है ना सबकॉन्शियस लेवल में, इसने यही किया है. इसने डिसीजन लिया है on the surface, on the face. So that is the guidance, guys. Do let me know what you feel about the reading. Thank you so much for watching, and then do remember to watch the next reading जहाँ पे मैं ये आदमी का चेक करूँगी कि what is this guy thinking at mental level, how is he feeling, how is he behaving, and what is happening at a spiritual level. So do remember to watch the next reading. Thank you so much for watching, and I'll see you again. Take care. Bye.